Good morning, 12th class. Students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video, we discussed about the concept of electric current and drift velocity. And in the last video, I also told you that drift velocity depends upon various factors. Okay. Today we will see the relation of current with drift velocity. So students, you know what is current and you also know what is drift velocity. What is the relation between the two? Today we will discuss beta. So right here once again, what is current? We know current is equal to charge of flowing per unit time. You know, and you also know what students, drift velocity minus E tau by m. ठीक है, तो these are the two parameter and we have to write the relation between the two. Okay, so let us consider a conductor. Let us consider a conductor having let us consider a conductor of length small l and area is a. So students, what is the volume of this conductor? You know, volume of this conductor, volume of conductor, if we multiply area and length, तो we have volume of this conductor बच्चों. Let also small n is number of electrons per unit volume. It means if we take a unit volume, then number of electron is let's say capital N. तो small n is capital N upon V. ठीक है बच्चों, तो स्मॉल एन की जो वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड नाउ वी बिकॉज टू राइट द करंट वी नीड टोटल चार्ज अपॉन टाइम. And you know from the quantization of charges, charge is equal to Q is equal to NE. Q is equal to NE. E is the charge on one electron and N is the total number of electrons. ठीक है, here N is the total number of electrons. तो if first of all total number of electrons, we राइट हेयर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बच्चों, तो इफ़ वी मल्टीप्लाई स्मॉल एन विद एरिया इनटू लेंथ, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बिकॉज बच्चों ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और यहाँ पे भी वॉल्यूम है. वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाती है तो क्या निकल जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपकी. दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, charge on one electron, that is E. तो what is the total charge? Find the total charge बच्चों. Total charge वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बच्चों, that is E. और नंबर what is the total number of electrons? Total number of electrons are NaL बच्चों. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है. दिस इज द टोटल चार्ज. And to write the current once again, I is equal to charge upon time. ठीक है, तो NaLe, this is the total charge divided by time बच्चों. We know length, अच्छा ओके, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज E, माइनस E लिख देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस आएगा. तो I is equal to डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, दैट इज वेलोसिटी. तो वी कैन राइट लाइक दिस वन एन ए ई और दिस इज वी और यहाँ पे लिख देते हैं डी. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इज अपोजिट टू ईच अदर बच्चों. ठीक है, तो इफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन देन इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों. तो दिस इज अबाउट रिलेशन of current with drift velocity बच्चों. You can see once again here, first of all we know about the current is equal to charge flowing per unit time and we also know drift velocity is equal to minus E tau by m. This also we know.
बेटा फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस वी नो चार्ज क्या इज इक्वल टू एन इज ए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर। तो कंसिडर वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर इज ए एंड एल। if we multiply number of electrons per unit volume multiply by volume, तो we have total number of electrons, ठीक है। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू माइनस ई। वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा बच्चों, माइनस ई। और हमने क्या किया बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम दैट इज करंट, और बेटा यहाँ से लेंथ अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी। तो वी हैव ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। बेटा इट इज डी इज इन द सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, वो वी के नीचे पे लिखा है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट रिलेशन ऑफ करंट विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ओम्स लॉ, जो मैंने आपको बताया भी था बच्चों। ओम्स लॉ में क्या बताया गया है, ओम्स लॉ, if we have a conductor and if we apply a potential difference across this conductor, current start flowing, ठीक है। तो if we have a conductor having resistance R and if we apply a potential difference and connecting a key here, तो on applying the voltage या potential difference, current start flowing through this conductor, but more is the voltage, more is the current, ठीक है। if we increase the voltage, current is also increasing। तो according to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to V, ठीक है। if we open a sign of proportionality here, we have 1 by R that is V, तो V is equal to IR बच्चों, ठीक है। तो this is your Ohm's law। here R is a constant that is resistance, ठीक है, that is a resistance बच्चों। तो this is R is the resistance of the conductor। बेटा Ohm's law के अकॉर्डिंग करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, बट प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर प्रेशर रिमेन सेम। तो इस कंडक्टर की जो प्रेशर है टेम्परेचर है वो सेम रहनी चाहिए बच्चों, ठीक है। उस केस में फिर क्या रहेगा, जो करंट है वो वोल्टेज के क्या रहेगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इफ यू अप्लाई मोर वोल्टेज इन ए कंडक्टर, तो मोर करंट स्टार्ट फ्लोइंग। बट कीप इन माइंड दिस Ohm's law is valid only in case of conductor, but if we apply the concept of semiconductors and insulator, तो this law is not valid बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो Ohm's law के बात की है। तो if you draw a relation between current and voltage, you will get a straight line। तो you will get a straight line बच्चों। अब क्वेश्चन इज दैट ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, लेकिन वी हैव ए न्यू पैरामीटर हेयर कांस्टेंट दैट इज रेजिस्टेंस। तो हाउ वी कैन डिफाइन द रेजिस्टेंस बच्चों, बेटा कोई भी कंडक्टर है या कोई भी मटेरियल है, वो कुछ ना कुछ करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, ठीक है, करंट को कंट्रोल भी करता है ये। तो रेजिस्टेंस का सिंबल बच्चा आर है, और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बच्चों रुकावट इन द पाथ ऑफ करंट, इन द पाथ ऑफ करंट, ठीक है। करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वही क्या बच्चों, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए क्या हुआ बच्चों, करंट फ्लो जब कंडक्टर से फ्लो करता है, तो करंट को क्या करती है, ये अपोज करती है, ठीक है उसको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करंट क्या हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस ना हो बच्चों, तो ऑलमोस्ट हमारे जो एप्लायंसेस है वो वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है, और फिर हम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।